आदाब और नमस्कार। नोवे इंडिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं नरेंद्रनाथ दत्ता के बारे में, उनकी जीवन कथा और अनकही बातें उनके बारे में, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे उनकी खुद की आवाज, जो उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में अपना भाषण दिया था, और उसके बाद उनके जीवन की पूरी कथा। आइए सुनते हैं। Distinguished delegates to the world's Parliament of Religions, ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं,
जिन्हें हिंदू धर्म के बारे में पश्चिमी दुनिया को समझाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने शिकागो में वर्ष 1893 में धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और इसके कारण भारत का एक अज्ञात भिक्षु अचानक प्रसिद्धि में आ गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को किसी के उद्धार और दुनिया के कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्या आप जानते हैं कि उनके व्याख्यान, लेखन, पत्र और कविताओं को स्वामी विवेकानंद के पूर्ण कार्य के रूप में प्रकाशित किया जाता है। वह हमेशा व्यक्तित्व के बजाय सार्वभौमिक सिद्धांतों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके पास जबरदस्त बुद्धि थी। उनका अद्वितीय योगदान हमें हमेशा प्रबुद्ध और जागृत करता है। वह एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। अगर कोई अमेरिका में वेदांत आंदोलन की उत्पत्ति का अध्ययन करना चाहता है, तो स्वामी विवेकानंद की अमेरिका भर की यात्रा का अध्ययन करें। वे एक महान विचारक, महान वक्ता और जोशीले देशभक्त थे। यह कहना गलत नहीं है कि वह सिर्फ एक आध्यात्मिक दिमाग से बढ़कर थे। उनकी कुछ जानकारी विस्तार से। जन्म 12 जनवरी 1863, जन्म स्थान कोलकाता, भारत। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता, पिता विश्वनाथ दत्ता, माता भुवनेश्वरी देवी। शिक्षा कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन स्कूल, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। धर्म हिंदू धर्म। गुरु रामकृष्ण। संस्थापक रामकृष्ण मिशन 1897, रामकृष्ण मठ, वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। दर्शन अद्वैत वेदांत। साहित्यिक कार्य राजयोग 1896, कर्म योग 1896, भक्ति योग 1896, ज्ञान योग, माई मास्टर 1901, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान 1897। मृत्यु 4 जुलाई 1902। मृत्यु स्थान बेलूर मठ, बेलूर, बंगाल। स्मारक बेलूर मठ, बेलूर, पश्चिम बंगाल। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, पहले कलकत्ता में हुआ था। वह एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उनके व्याख्यानों, लेखनों, पत्रों, कविताओं, विचारों ने न केवल भारत के युवाओं को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। वह कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ के संस्थापक हैं, जो अभी भी जरूरतमंदों की मदद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे एक बुद्धिमान और बहुत ही सरल इंसान थे। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, जो कलकत्ता के एक संपन्न बंगाली परिवार से थे। वह विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी की 8 संतानों में से एक थे। मकर संक्रांति के अवसर पर उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके पिता एक वकील और समाज के प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। विवेकानंद की मां एक ऐसी महिला थी जो भगवान में विश्वास रखती हैं और उनके बेटे पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। 1871 में 8 साल की उम्र में विवेकानंद का दाखिला ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संस्थान में और बाद में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ। वह पश्चिमी दर्शन, ईसाई धर्म और विज्ञान के संपर्क में थे। उन्हें वाद्य और गायन दोनों तरह के संगीत में रुचि थी। वह खेल, जिम्नास्टिक, कुश्ती और शरीर सौष्ठव में सक्रिय थे। उन्हें पढ़ने का भी शौक था और जब तक उन्होंने कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, तब तक उन्होंने विभिन्न विषयों का व्यापक ज्ञान हासिल कर लिया था। क्या आप जानते हैं कि एक तरफ उन्होंने भगवद गीता और उपनिषद जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े और दूसरी तरफ डेविड ह्यूम,
हर्बर्ट स्पेंसर आदि के पश्चिमी दर्शन और आध्यात्मिकता। वह एक धार्मिक परिवार में पले बढ़े थे, लेकिन उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया और ज्ञान ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया, और कभी-कभी वे अज्ञेयवाद में विश्वास करते थे। लेकिन वह ईश्वर की सर्वोच्चता के तथ्य को पूरी तरह से नकार नहीं सके। 1880 में वह केशव चंद्र सेन के नव विधान में शामिल हुए और केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाले साधारण ब्रह्मा समाज के सदस्य भी बने। मूर्ति पूजा के विपरीत ब्रह्मा समाज ने एक ईश्वर को मान्यता दी। विवेकानंद के मन में कई सवाल चल रहे थे और अपने आध्यात्मिक संकट के दौरान उन्होंने सबसे पहले स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्राचार्य विलियम हेस्टी से श्री रामकृष्ण के बारे में सुना। वह अंत में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले और विवेकानंद ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? जो उसने इतने सारे आध्यात्मिक नेताओं से पूछा था, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए थे। लेकिन जब उन्होंने रामकृष्ण से पूछा तो उन्होंने इतना सरल उत्तर दिया कि हाँ, मेरे पास है। मैं भगवान को उतना ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना मैं आपको देखता हूँ, केवल बहुत गहरे अर्थों में। इसके बाद विवेकानंद दक्षिणेश्वर जाने लगे और उनके मन में उठ रहे सवालों के कई जवाब मिले। जब विवेकानंद के पिता की मृत्यु हुई तो पूरे परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। वह रामकृष्ण के पास गए और उन्हें अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन रामकृष्ण ने मना कर दिया और विवेकानंद को देवी काली के सामने खुद प्रार्थना करने के लिए कहा। वह धन नहीं मांग सकती थे, लेकिन इसके बजाय उसने विवेक और वैराग्य मांगा। उस दिन उन्हें आध्यात्मिक जागृति के साथ चिन्हित किया गया था और तपस्वी जीवन का एक तरीका शुरू किया गया था। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था और उन्होंने रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया और उन्हें कलकत्ता और फिर बाद में कोसीपुर के एक गार्डन हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया। विवेकानंद और रामकृष्ण के अन्य शिष्यों ने उनकी देखभाल की। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। नरेंद्र को सिखाया गया था कि पुरुषों की सेवा भगवान की सबसे प्रभावी पूजा है। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्रनाथ सहित उनके 15 शिष्य उत्तरी कलकत्ता के बारानगर में एक साथ रहने लगे, जिसका नाम रामकृष्ण मठ था। 1887 में सभी शिष्यों ने संन्यास की शपथ ली और नरेंद्रनाथ विवेकानंद के रूप में उभरे, जो समझदार ज्ञान का आनंद है। सभी ने योग और ध्यान किया। इसके अलावा विवेकानंद ने मठ छोड़ दिया और पूरे भारत का पैदल भ्रमण करने का फैसला किया, जिसे परिव्राजक के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने लोगों के कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को देखा और यह भी देखा कि आम लोगों को अपने दैनिक जीवन में उनके कष्टों आदि का क्या सामना करना पड़ता है। जब उन्हें अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व संसद के बारे में पता चला, वह भारत और अपने गुरु के दर्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठक में भाग लेने के इच्छुक थे। विभिन्न परेशानियों के बाद उन्होंने धार्मिक सभा में भाग लिया। 11 सितंबर 1893 को वे मंच पर आए और अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों कहकर सभी को चौंका दिया। इसके लिए उन्हें दर्शकों से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों, उनके आध्यात्मिक महत्व आदि का वर्णन किया। वे अमेरिका में ही करीब 2.5 साल रहे और न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने वेदांत के दर्शन, अध्यात्मवाद और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा भी की। 1897 के आसपास वे भारत लौट आए
और कलकत्ता पहुँचे, जहां उन्होंने 1 मई 1897 को बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन के लक्ष्य कर्म योग पर आधारित थे और इसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और पीड़ित या परेशान आबादी की सेवा करना था। इस मिशन के तहत कई सामाजिक सेवाएं भी की जाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल स्थापित करना। देश भर में सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, पुनर्वास कार्यों के माध्यम से वेदांत की शिक्षाएं भी प्रदान की गईं। आपको बता दें कि विवेकानंद की शिक्षाएं ज्यादातर रामकृष्ण की दिव्य अभिव्यक्तियों की आध्यात्मिक शिक्षाओं और उनके अद्वैत वेदांत दर्शन के आंतरिककरण पर आधारित थीं। उनके अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त करना है और इसमें संपूर्ण धर्म शामिल है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वह 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने महासमाधि प्राप्त की थी और गंगा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। निस्संदेह स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं ने न केवल युवाओं को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत की एकता की सच्ची नींव रखी। उन्होंने हमें सिखाया कि इतनी विविधताओं के साथ कैसे रहना है। वह पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच एक आभासी सेतु बनाने में सफल रहे। उन्होंने भारत की संस्कृति को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग करने में अहम भूमिका निभाई। नोवे इंडिया न्यूज की ओर से स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि। पृथ्वी पर पैदा हुए महान व्यक्तियों में से एक। मैं अतीक रहमान। नोवे इंडिया न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। रोजाना बड़ी खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।